Okay, class. Today we are going to study about some certain types of education technologies related to media and their uses in learning, teaching, learning process, basically. So, first of all, we see that technology itself has been derived from two Greek words, techno, that is related to techniques and how to do something, and logi means knowledge or study. So, technology is defined as the technical know-how or technical knowledge. While man uses material sources for power, machines, and tools to make work easier and productive in the sake of satisfying his or her needs and wants. So basic purpose or the role of technology is to assist the human beings in their way of doing any task or any sort of job, whatever they want to perform. And whereas science tries to explain why things happen, technology is concerned with how things happen. So basically, technology is the application of scientific knowledge uh, and to engineer the tools that may assist the human beings in their daily routine life and work. So we see as well the education technology is related to the uh, logical arrangement of education activities, and it's improving the learning teaching process as said by the Bruce and Marsh. And Richmond has defined it as a term as a scientific approach in solving, organizing, and implementing and evaluating educational activities related to teaching and learning. As well, the National Council of Education Technology UK defined the term the education technology as the development, application, and evaluation of education systems for improving human learning process. So the core purpose of education technology is again to develop and to apply and evaluate education systems that can improve human learning process, and these are related to those scientific approaches that may help in solving and organizing, implementing, and evaluating education activities of the for the students for their better learning and to improve their learning. So we see today's topic is about media education and media and its type. So we see media itself is everywhere, and it has become a part of our life. And even today we cannot imagine our life without media because we are using mobile phones, we are using laptops, we are using notebooks, we are using computers, we are using internet, we are using TV, we are using radio, we are using print media. So media is always around us. Media is around us in the form of books, in the form of magazine, in the form of newspapers, in the form of electronic media. So our life is totally covered by the media. So the media plays a dominant role in learning process also. So we are learning from media with the help of media, either in formal or non-formal, whatever the mode is. And media has potential to shape personalities and change the way we perceive and understand the world. So because we are driving and we are taking a lot of information from media, so media directly impact on our thinking and cognition. So it is responsible to shape ourselves and to shape our behavior and to reshape our ideas, and as well as to reshape our personalities. So there may be some people who may be good, who may become good because of use of media, and there are some people who may become bad because of use of media. So media is affecting our life in good way and the bad way, in both ways, basically in both directions. So education and media are integral part of learning. They form a person and transform society. So basically, the right use of media can form a person good and right, and it can transform to the society. So it can make the it can help the person to be a good member of the society. So this is about media introduction. So we see as the definition, as you people have defined, that media itself is a plural form of medium. So medium, as you should have studied about the model of communication, where we use the term medium that is used to send and receive messages, that is source by which message is communicated from sender to a receiver, basically. So that is meant by medium. So media can be defined as means through which information is shared or communicated among people, like language, like newspaper, radio, TV, and internet. All these are the kinds of media, basically. So through all these media, we basically share information in many ways, by words, language, in written, in spoken, uh, or so all these are there in written and spoken and through internet. So Brown says in 1959, views media as thing or a vehicle
that carry information between the source and receiver. As earlier I've defined this, that in the communication model we have already studied about the model of communication, and which we use the media as a source to communicate our message. So computer diagram film so as to facilitate communication between two parties. In this case, media help the learner's sensory organs to comprehend the planned content and thus improve the teaching learning process. So when we use media in education, it serves to facilitate communication between two parties, students and teachers. And in this case, media helps learners' sensory organs to comprehend planned content. And so here today we will see that how media is helping the students and the teachers in teaching learning process. So media is again defined. Media may be referred to the communication tools that are used to store and deliver information of data or data. So media is there to deliver or to store information to Damon. So the types of media we see: the print media in form of newspaper, magazine, books, and printed material, while electronic media in terms of radio, television, internet, and cinema. So these are the two major types of media: print media and the electronic media. So whatever was available in the past in the print form, now it is available in electronic form also. All kind of newspapers are available on websites, on their websites, and the magazines are available on their websites. Books are changed into e-books, and all the kind of printed media, journals have been changed into e-journals, and articles have been changed into e-articles. So all the information today we are accessing mostly with the help of electronic media, no doubt. So, and there is parallel use of radio, televisions as well at our homes, at our personal interest level. No doubt, the use of radio has become very limited in today's the present life, because other sources or other media sources are have become more strong and more useful as compared to radio. So what there is a change, no doubt. But we need to understand the role of media itself, and the media education. We are required to know that the media is the most powerful entity on which that is why they have the power to make the innocent guilty, and to make the guilty innocent. So here you see there is a twist between these two terms, innocent, guilty. So if a person who is innocent before using media may become guilty, and a person who may be guilty before use of media may become innocent, because there is some kind of education that may change the human life and the pattern of life. Uh, so it depends. So media education is a process through which the individual become media literate and able to critically understand the nature, technique, and impact of media message and production. So media education itself is a very huge field now, because many people, and even hundreds and thousand people who are educationists in all fields, science, arts, humanities, and all social sciences, they are working on distance education or distance learning and e-learning, and they are producing a lot of very valuable interactive videos and very valuable interactive lectures that are available on YouTube or TeacherTube and so many other sort of websites or university websites. Even distance education institutions like universities or colleges are working on this kind of media education. So media used for education purposes is called educational media or academic communication. So there are so many channels have been developed so far on YouTube and other social media channels, or websites like Facebook and Instagram, and so many Twitter and so many others social media sites. So basically, the purpose is to educate the people, and that is why they are serving as academic communication. They are serving as education media, and even I know myself, your seniors from previous beer science class 1.5. Some of them are already engaged in developing their personal YouTube channels, and they are working on their personal Facebook pages and their online academies they have developed. I don't know exactly how many of you are working online in this field or not, but there is a potential to work online as well. So people are also earning from their online channels today. Even if you are not doing any job, you can start this job as well. हाँ मिसुम कर रहे हैं कोई ऑनलाइन आपका कोई यूट्यूब चैनल बनाया है किसी ने क्लास आके क्या किसने बनाया है बेटा आप में से No, sir. anyhow there is, oh, you people can create your own channels. Even you people are also accessing my video on my YouTube channel after
I am recording this lecture also, and I will put this lecture on online after some time when this class will end. Now we see there are different types of media. So already we have discussed print media, electronic media, and digital media. As we seen, print media was the oldest form of media that included all type of printed material, including books, newspaper, magazines, journals, and newsletters. These are the things that we are very much used to since our childhood. That we were engaged in all these kind of things. But now, as you see, that we are changed even our mode of learning into electronic mode and the distance mode, and that is why we are more dependent on electronic media. That is basically information made and training possible through TV, radio, movies, and more internet and email, all these things, and even your social media. That is altogether electronic media. And even we say digital media, fast and efficient form of mass media, it encompasses the type of social media. Even we name it as a digital media now, right now. Another birth of media, that is digital media. We name it as social media, blog, forums, online forum, web portal. That we are basically learning through this course of ICT. Okay, so first of all, we see the first tool of media that has been remained very popular last 20 years or before 30, 40 years even. It has been become very popular because it was the most popular tool that was used for recording audio. So tape recorder, basically, you can compare it with a voice recorder. Today in your mobile phone you have this tool or a gadget audio so application of voice recording. So tape recorder basically was used to sounds to on magnetic tape, which could be reproduced at will and as many times as required. So tape recorder previously was a tool that was for use to record your voice messages and voice recording. And audio tape recorder, tape deck, and tape machine is an audio storage device that records and plays back sounds. It may be used for education purposes also. So in the previous century, in the 20th century, radio or the tape recorder was, and the tapes and decks were very much popular. And these were even my generation who were born in 80s, they are very much familiar with the use of these tapes, recording and cassettes and all these kind of media, because we were mostly using this in our teenage and when we become young at that time. So tape recorder was very much popular at that time. तो हम लोगों ने बेटा ज़्यादा बेटा केसेट्स और डेक्स और टेप्स वगैरह भी ज़्यादा चीज़ें देखी और इस पे यूज़ किया। और मोस्टली जो एजुकेशन मीडिया था इसमें ज़ाहिर बात है अगर इसमें कोई मैसेज था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वॉल्व नहीं हुई थी, तो जो लिमिटेड सी टेक्नोलॉजी थी उसमें मेरा टेप रिकॉर्डर या डेक को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था कि भाई आप इसको क्लासरूम सेटिंग के अंदर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकें जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास हो। तो इसमें एडवांटेज ये थे कि रिकॉर्डिंग कैन बी रेज्ड एंड टेप कैन बी रीयूज। तो आपका जो वो मीडिया था, जो आपका मैग्नेटिक टेप थी, उसमें बार बार रिकॉर्डिंग हो सकती थी, बार बार उसको रेज किया जा सकता था। तो चीप इस लिहाज से थी कि कॉस्टली भी नहीं थी, इजी टू ऑपरेट एज इट हैज़ ओनली फ्यू कंट्रोल्स। तो आपने रिवाइंड करना है या आपने फॉरवर्ड करना है या आपने प्ले करना है या पॉज करना है, तो इट वॉज वेरी इजी टू यूज़। एंड द टॉक ऑफ वेल नोन पर्सनैलिटीज कैन बी रिकॉर्डेड। तो आप इसमें किसी भी बड़े शख्सियात उनकी आप रिकॉर्डिंग कर लेते थे फॉर टीचिंग म्यूज़िक, फोनिक्स एंड रीडिंग एंड पोइट्री। तो मोस्टली इन पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा रहा था। तो इसके अलावा बेटा इसके डिसएडवांटेज भी थी। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था इस मीडिया का कि देयर वाज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर। आप जब भी कोई भी ऑडियो वॉइस रिकॉर्डर अब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका पर्सनल स्पीकर से रब्ता नहीं होता। इवन आपके जो भी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज होते हैं उसमें भी आपका जो मैसेज है वो नहीं होता। आपके जो पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं उसमें भी आप रब्ता नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको सुन सकते हैं। तो लिसनिंग फॉर लॉन्ग टाइम जनरली डिस्ट्रैक्ट लर्नर। तो बहुत ज़्यादा देर तक आप विजुअल्स के बगैर जब लिसनिंग करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं या आपकी टेंशन स्पैम कम हो जाता है। क्योंकि उसमें विजुअल्स नहीं होते तो आप ऑटोमेटिकली जो लर्नर होता है या लिसनर होता है उसका थोड़ा सा टेंशन स्पैम कम हो जाता है। इनकरेजेस पैसिव लर्निंग। तो लर्निंग इतनी एक्टिव नहीं थी जैसा आपने लिसन करना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपके मोटिवेशन लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको लर्न कर सकते हैं या कितना आप उसको सुन सकते हैं गौर से।
अदरवाइज फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ज़्यादा देर आप फोकस नहीं कर पाते। तो इट वाज कॉस्टली समटाइम्स कि आपको जो चीज़ें हैं वो केसेस दोबारा नई नई परचेज करनी पड़ती थी, तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर आपको पे करना पड़ता था। सो इट डजंट प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल लैबोरेटरी एक्सपीरियंस। इसमें आपको विजुअल्स नहीं दे सकते, कोई कोई आप प्रैक्टिकल काम नहीं देख सकते, सुन सकते हैं बस, तो प्रैक्टिकली आप आपको देख नहीं सकते किसी काम को। तो इसी तरह का मिलता जुलता बेटा मीडिया है रेडियो, जिसके बारे में आपने शायद पढ़ा भी हो। अभी आपकी जो असाइनमेंट थी मैथ मीडिया का, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है रेडियो। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। चूँकि रेडियो भी वो टेक्नोलॉजी है तकरीबन जो हम जो है ना इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट कि हमारा अपना यूनिवर्सिटी का जो रेडियो है एफएम, किसी को पता है एफएम कौन सा है ये रेडियो का जो है? जी क्लास, कभी सुना है रेडियो का आपने या नहीं पता आपको? यस सर, सुना है। आई थिंक सरगोदा में है ना एफएम 92 भी। और एफएम 98.2 इसकी यूनी का तो हाँ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पे जो जी, सारा है। है ये हर रोज़ जो है ना वो आपकी जो इफ्तारी की नशरियात होती है इसमें चलती है, 1.5 घंटा उसकी भी, उसके अलावा बाकी एजुकेशनल प्रोग्राम्स और डिस्कशंस, ये काफ़ी कुछ इसमें चल रहा होता है। तो इसमें काफ़ी नामवर जो शख्सियात हैं, नामवर टीचर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, अदर दैन यूनिवर्सिटी से मेहमान आते हैं, उसमें बातचीत करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। तो सरगोदा के लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, पता नहीं आप लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। खैर मैं भी बड़ा अर्सा हो गया मैंने रेडियो को छोड़ा हो, वरना जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कभी टीवी नहीं देखा था। यानी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जब आई वाज स्टडिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, तो वहाँ पे चूँकि टीवी होता था, ऐसा नहीं था कि हमारे पास टीवी नहीं था, लेकिन टीवी हम सब देखते थे वो क्रिकेट मैचेस के लिए। हमारा जो एक हॉल था, सिटिंग हॉल हम उसे कहते थे, उसके अंदर टीवी लगा होता था, यानी टीवी पुराने टीवी जो होता था वही था। तो उसमें जब कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच या पाकिस्तान के या कोई ऐसा वर्ल्ड कप या ऐसी कोई बड़ी सीरीज़ होती थी, तो फिर उसको ओपन किया जाता था और फिर हम उसमें टीवी देखते थे। अदरवाइज़ वहाँ पे कैंपस लाइफ में और हॉस्टल लाइफ में रेडियो सबसे बड़ा हमारा साथी था। और रात को जो है ना वो कभी कोई सुनना है तो रेडियो पे सुनना है अक्सर। वो जो आप कह लें गाने शाने के प्रोग्राम, गज़ल के प्रोग्राम, और बड़े बड़े खूबसूरत एफएम जो 101 पे, 102, 103, तो उसमें बड़े खूबसूरत प्रोग्राम होते थे म्यूज़िक के, और बड़े समटाइम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते थे, डिस्कशन होती थी। तो वो किसी वक्त जो था ना रात को, बल्कि अक्सर तकरीबन 7 साल में रहा हूँ, तो यही सबसे बड़ा मेरा मेरा कम से कम ये साथी था उस ज़माने में, चूँकि उस वक्त मोबाइल इतने ज़्यादा एंड्रॉयड नहीं थे, सिंपल बटनों वाले मोबाइल थे और टीवी अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये रेडियो ही जो सबसे बड़ा ये सहारा था सम टाइम पास एंटरटेनमेंट का या टाइम पास करने का। तो एनी हाउ उसको हम कॉल भी करते थे, जो रेडियो प्रोग्राम से उसमें हम बाकायदा कॉल करके अपना फीडबैक भी देते थे और कमेंट्स भी करते थे और फरमाइशें भी करते थे हम तमाम स्टूडेंट्स। तो बहरहाल अब तो आपका दौर है, आपके दौर में रेडियो शायद इतना वर्थ वाइल नहीं है, लेकिन हमें एज ए एजुकेशन टूल इसको समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि ये इसमें हमें कुछ बेसिक्स देता है, यानी हमें वो बेसिक्स देता है जिसकी वजह से हम एडवांसमेंट की तरफ मूव करते हैं। बेटा चीज़ें रूट्स होती हैं, रूट से हम आगे निकलते हैं। तो इसलिए रेडियो मैस मीडिया में रूट है, यानी ये वो रूट है जो कि इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1920 टू 1945। रेडियो डेवलप इनटू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैस मीडिया। तो मैं तो उसको कहूँगा 1920 से लेके 19 तकरीबन 90 तक कह लें, या 2000 1990 तक तो मैं कहूँगा कि लाजमी लोग जो है ना पूरी पाकिस्तान में लोग जो है ना वो रेडियो सुनते रहे हैं। 90s के बाद मैंने देखा है कि टीवी घरों में आए हैं, और इससे पहले बेटा टीवीज़ नहीं थे। हमारे घर में सबसे पहला टीवी जो है 1980s में आया है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 86 में आया है 87 में आया है। तो वो पहला टीवी था जो हमारे मोहल्ले में किसी ने ख़रीदा था हमारी फैमिली से, यानी हमारी फैमिली ने ख़रीदा था, ये मेरे पेरेंट्स ने ख़रीदा था। तो बाकी किसी मोहल्ले में कोई टीवी नहीं था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी घरों में आने शुरू हुए हैं। तो पहले तो टीवी जो था वो भी, बल्कि जो हमारी टीन एज है यानी जो स्कूल लाइफ थी सारी, कॉलेज लाइफ तक, तो टीवी ही जो था ना वो एंटीना वाला टीवी यूज़ करते थे। केबल भी शायद उस वक्त नहीं आई थी, केबल वाली दौर बाद में शुरू हुआ है तकरीबन एट द एंड ऑफ जो 20th सेंचुरी है उसके ऑलमोस्ट आखिर में जाके 2000 के करीब जाके 98 97 में जाके शायद केबल शेबल शुरू हुई। लेकिन इसमें भी हमारे जो पेरेंट्स थे, चूँकि वो थोड़े से कह लें कि पुराने ख़्यालात के मालिक थे या ज़्यादा मजहबी थे,
तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती थी कि भाई आप ज़्यादा टीवी देख सके, ख़ासतौर पे इंडिया चैनल का, वो दूरदर्शन इंडिया का चैनल वो नहीं लगा सकते घर के अंदर। उससे बड़ी नफ़रत थी कि ये इंडिया का चैनल है और इसमें यानी फ़िल्में लगती हैं इंडिया की, और इंडिया के ये वो होता है, घर में वीसीआर नहीं लगा सकते, फ़िल्में नहीं देख सकते, गाने नहीं सुन सकते। तो इस तरह का बड़ा रिस्ट्रिक्टेड किस्म का बड़ा मजहबी सा माहौल था। तो उसमें यानी घर में डिश नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी जो जो थी ना बड़ों की बड़ी सख्ती थी इस पे, यानी ना सिर्फ वो घर में ही सख्ती करते बल्कि मसाजिद में भी अगर वो होते थे तो वहाँ पे भी यही ऐलान करते घरों में आप वीसीआर, और घरों में आप डिश एंटीना या डिशेस और केबल जो है ना वो ना लगाएं घरों में, यही प्रीच करते थे बड़े हमारे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब ज़माना बेटा चेंज हो रहा है, हम लोग नई ज़रूरियात है, नई जनरेशन है, और आगे की जनरेशन हमने तैयार करनी है। हमें उन्होंने तैयार किया था, कुछ हम उनकी मान ली, कुछ उनकी नहीं मानी। अब हमारी जनरेशन है वो कुछ हमारी मानेंगी, कुछ हमारी नहीं मानेंगी। तो बहरहाल हमने बेटा वी नीड टू एजुकेट आवर यंगस्टर्स, आवर किड्स, आवर टीनेजर्स टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ राइट यूज़ ऑफ मीडिया। ये बड़ा ज़रूरी है, चूँकि रॉन्ग यूज़ ऑफ मीडिया तो हर कोई बता रहा है, या वो ऑटोमेटिकली शैतान हमें हर वक्त गाइड कर रहा होता है, लेकिन राइट यूज़ ऑफ मीडिया बताने के लिए टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए रखा है कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ हमारे पास जो फॉर्म ऑफ मीडिया था सबसे पहला मैस मीडिया, वो बेसिकली रेडियो ही था। और स्टिल अभी भी बेटा रेडियो जो है वो यूज़ हो रहा है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि रेडियो ज़ीरो हो गया, ऐसा नहीं है। रेडियो अभी भी लिसनर्स हैं, रेडियो के फॉलोअर्स हैं, और इसको यूज़ करते हैं लोग। आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले जिस क्लासेस होती थी शुरू में, उनको तो मैं बाकायदा असाइनमेंट देता था कि भाई आपने कुछ नोट्स लेने हैं, कुछ प्रोग्राम रेडियो पे सुनने हैं, और वो प्रोग्राम सुनने के बाद आपने अपना जो फीडबैक है रिटन फॉर्म में और ओरल फॉर्म में आपने क्लासरूम के साथ शेयर करना है। अब पता नहीं आप ये काम करेंगे कि नहीं। जी क्लास, मेरी आवाज़ आ रही बेटा आपको? जी सर, आवाज आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा है? सर आपने बोला कि रेडियो पे जो है ना आपको असाइनमेंट मिलेगी, उनको लिसन करना है। हाँ, अ, उसके लिए कोई भी प्रोग्राम, जी सर। और उसके बाद उसको शेयर करना है कि इसमें हमने ये लर्न किया, ये अच्छा लगा, ये। सर जी, वैसे ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, इसमें रेडियो का कोई सर वो रहा ही नहीं है मेरे ख्याल से, इतना ज्यादा सर वो इसमें हम लिसन कर रहे होते हैं सर, इसलिए काइंडली ये असाइनमेंट ना दें। बेटा वो तो अपने क्लास में भी तो आपने लिसन करना था। क्लास में कौन सा लिसन करने के बगैर आपने बैठना था? अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा होता और फेस टू फेस भी होता तो मैंने आपके साथ बातें नहीं करनी थी। और ये तो आपके लिए टाइम लेकिन के सर लिए, ये तो आपके लिए टाइम के लिए है ना। देखिए आपके इंस्ट्रक्शन तो तीन तीन सिर्फ क्लासेस होती हैं आपकी मैक्सिमम, तो 3 से 4 घंटे का आपका टोटल टाइम स्पैम होता है स्टडी का। तो बाकी तो आप फ्री हैं सारा दिन। लेकिन सर फ्री मैं तो सर अपनी अगर मैं बताऊं तो मैं फ्री तो सर मैं सुबह से क्लासेस ट्यूशन पढ़ाना शुरू होता हूँ, और शाम तक सर मैं पढ़ा रहा होता हूँ क्लासेस। तो सर ये बाकी असाइनमेंट जो आप देते हैं वो तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मोस्टली हमारी क्लास के लोग सर इसी तरह कर रहे होते हैं। आपके मोबाइल में रेडियो का ऑप्शन है? जी सर है। आज या कल या परसों या हफ्ते में आपने रेडियो के बारे में, रेडियो जो हमारा एफएम है ना 98.2, इसकी फ्रिक्वेंसी पे जाना है, इसको ऑन करना और इसको आपने सुनना आधा घंटा। ठीक है क्लास? क्लास आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ठीक है सर जी, सुन लेंगे। आधा घंटा आपने सुनना है, जिसमें चाहे आप अफ्तारी का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक को फॉलो करके आप बेशक अफ्तारी के जो आखिरी 30 मिनट्स होते हैं, जब आप नमाज वो दुआ कर रहे होते हैं, उससे पहले आधा घंटा जो होता है उसमें आप उसको सुन लें, या उससे 1 घंटा पहले सुन लें, वट एवर। आपने इसको डिसाइड करना है, संडे को सुनना है, सैटरडे को सुनना है, चूँकि हर रोज़ आपकी बेटा क्लासेस नहीं हो रही होती। तो इसलिए आप अगर आज इंगेज हैं मंडे को, ट्यूसडे को, तो हो सकता है संडे को इंगेज ना हो। तो किसी ना किसी दिन तो आपके पास टाइम होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इतना बिजी स्केड्यूल है आपका कि भी आपके पास 1 मिनट भी नहीं है कोई और काम करने के लिए। जी सर, सुन लेंगे, जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह, और सर मैं रिस्पांस भी दूंगा। ठीक है, तो आधा घंटा आप सबने रेडियो को सुनना है। तो रेडियो बेटा क्या है? रेडियो एक्सटेंड्स द एरिया ऑफ अक्वेंटेंस, कि हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको, इस एरिया को बढ़ाता है। द चाइल्ड गेन्स नॉलेज ओनली व्हेन ही और शी इंटरेक्ट्स विद द सराउंडिंग्स,
रेडियो वाइडन्स आइडिया ऑफ acquaintance, ठीक है, तो आपका जो acquaintance है थ्रू रेडियो वो बढ़ जाती है। रेडियो brings word into classroom through the means of description, narration, dramatization and so on with the help of regional voice and natural sounds। तो बेसिक जो बेटा रोल है रेडियो का, that we can see that we can listen descriptions, narrations and dramatization। तो पहले तो रेडियो के अंदर बकायदा जब टीवी, चूँकि आपको पता है 60s में टीवी शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो इवन मैंने बताया कि इसका जो रूज है वो 90s के बाद जाके इसको रूज मिला है ज़्यादा। बड़े शहरों को मुझे नहीं पता, मैं तो ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 90s या 80s के एंड पे या 90s के शुरू में जाके इन लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा सेंस हुआ है, वरना उससे पहले तो सिर्फ रेडियो ही था। तो रेडियो बड़ा खूबसूरत ड्रामास थे, ड्रामा स्क्रिप्ट्स होते थे और उनको प्ले किया जाता था और लोग उनको सुनते थे ऑडियो के थ्रू, और उससे पहले महसूस होते थे। इसके अलावा नरेशन डिस्क्रिप्शन तो है ही है, और उसमें ओरिजिनल वॉइस हैं और बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं जिन्होंने अपना ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। तारक अजीज़ हैं, मोइन अख्तर हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अवाइल में जो स्टार्टिंग लाइफ थी, दे स्टार्टेड फ्राम देयर कैरियर फ्राम द रेडियो जो पाकिस्तान रेडियो था उससे। और रेडियो हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट लिसनर्स अराउंड द वर्ल्ड बैकवर्ड एंड और फॉरवर्ड इन टाइम। तो बेसिकली रेडियो के थ्रू माजी और यानी प्रेजेंट और माजी और के बारे में यानी चीज़ें, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहे हैं, ये होते होते हैं जिसमें आप यानी जैसे ये कमेंट है उसका कि आप आगे पीछे मूव करते हैं लाइफ के अंदर। तो इट ब्रिंग्स अ पीपल रियल कंट्रीब्यूशन, और आप लोगों के जो रियल कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। इट हेल्प्स द लर्नर्स टू गेट फैमिलियर विद द एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हु हैव गिवन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो असल में जो रेडियो पढ़ने का बेटा मकसद है, यही रोल बेटा मैस मीडिया प्ले कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो मैं डिटेल में रेडियो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसका मकसद यही है कि ये सारा मैस मीडिया फिट आता है, चाहे वो किसी फॉर्मेट में भी है। तो हम जो ऐसे लोग हैं जैसे जिनके रियल कंट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, चाहे वो टीवी के थ्रू चलता है, आपके यूट्यूब से पता चलता है, चाहे आपको फेसबुक से पता चलता है या आपको व्हाट्सएप से पता चलता है। तो ये जो जितना भी मैस मीडिया है आपको इस सारे में आपको डिजिटल मीडिया एजुकेट कर रहा होता है। नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू हियर द वॉइस ऑफ सच पीपल, इट मे बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। तो जारी बात है कि अगर ये लोग अगर रेडियो पे, टीवी पे या मैस मीडिया पे ना आए या आप जो भी, तो हम उन्हें नहीं सुन सकते, तो वैसे उनसे प्रैक्टिकली मिल भी नहीं सकते। तो ये है कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, इस तरह बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के जो ये हमें इनके इंटरव्यूज़ और इनकी लाइफ के बारे में वो एक दिन जियो के साथ, एक आपको पता है चैनल पे एक प्रोग्राम चलता है, तो बहुत शख्सियात के बारे में हमें उनके रूटीन्स के बारे में पता चलता है। तो जो मीडिया बेटा एजुकेटिव है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमें बताता है। सो इट प्लेसेस एन इवेंट ऑफ करंट नेचर, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आर पोर्ट्रेट टू बी टू द पीपल। और जो करंट आपके नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स सेलिब्रेट हो रहे होते हैं उसके बारे में हमें आगाही मिलती है। दिस हेल्प द पीपल टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। चूँकि न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ भी होती हैं रेडियो के ऊपर, तो रेडियो न्यूज़ में हमें जो कुछ मौजूदा दिन के बारे में खबरें होती हैं वो भी पता चलती रहती हैं। और समटाइम इस पर प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे लिटरेसी के हवाले से या टीचर डे के हवाले से या पेरेंट्स डे के हवाले से, इस तरह से जो भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। 23 मार्च है, 14 अगस्त है, या जो भी। सो रेडियो कैरीज फ्रेश इंफॉर्मेशन अर्लियर दैन द सेम इज़ फाउंड इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। तो मोस्टली जो रेडियो के ऊपर जो कमेंट्री हो रही होती है, डिस्कशंस हो रही होती हैं, डिस्क्रिप्शंस आ रहे होते हैं, तो मोस्टली ये वही चीज़ें होती हैं जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह में या जो मैगजीन्स वगैरह में चीज़ें रिपोर्ट के फॉर्म में पब्लिश होती हैं। तो अक्सर जो आपके जो प्रोग्राम होस्ट होते हैं वो वहीं से इंफॉर्मेशन लेके ऑडियो फॉर्म में हमसे शेयर कर रहे होते हैं। तो इट ब्रिंग्स इन इंक्लूडिंग इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो आपके जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में भी बच्चों को गाइड किया जा सकता है। रेडियो वर्क्स विद ओनली वॉइस एंड साउंड, इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो चूँकि आप सिर्फ सुन सकते हैं और उसी से इमेजिनेशन करते हैं, तो इसकी आपकी इमेजिनेशन इंक्रीज़ होती है और समटाइम क्रिएटिविटी से इंक्रीज़ होती है। इट हेल्प्स टू द स्लो लर्नर्स एंड द पीपल्स हैविंग पुअर साइट। तो ऐसे जो बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं वो चूँकि अगर फॉलो करें तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनकी साइट विजन जो है वो कम है, प्रॉपर नहीं देख सकते, उनके लिए लिसनिंग होती है। और ब्लाइंड्स के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। द पीपल लिसन टू द टीचर इन क्लासरूम एंड दे सप्लीमेंट द लर्निंग बाय गोइंग थ्रू बुक्स। तो यह होता है कि जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और फिर
मुख्तलिफ बुक से कंसल्ट करते हैं अभी लर्निंग के लिए. So radio broadcast is a boon for the learners who have effective eyesight and defective eyesight, and those who are slow in learning की बात होगी. It refreshes the knowledge of teachers. Broadcast program carries more content than what is found in the textbooks. तो आपके जो बेटा ये प्रोग्राम्स हैं, समटाइम इसमें बड़ी अच्छी हदीस और समटाइम पुरानी रेफरेंसेस और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, और उसमें आपके जो जो टॉपिक्स होते हैं उस पर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, साइंस के और एग्रीकल्चर के और मुख्तलिफ जो एजुकेशन के और सोशल वर्क के, सोशोलॉजी के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इसमें बहस हो रही है. तो इसमें हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लर्नर लोगों से मिलती है. वेरियस सब्जेक्ट्स एरियाज कम इनटू द फील्ड ऑफ कंटेंट. दिस हेल्प द टीचर टू रिफ्रेश हिज और कंटेंट नॉलेज इन द एनी सब्जेक्ट और पार्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ये बेटा टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है. टीचर भी अपने कंटेंट्स को रिफ्रेश कर सकता है. वेल सूटेड फॉर द सब्जेक्ट सच इज लैंग्वेज, म्यूजिक. रेडियो सूटेड फॉर द टीचिंग म्यूजिक एंड आर्ट्स आल्सो. तो मोस्टली बेटा जो रेडियो है उसको ज़्यादातर फोकस किया जाता है म्यूज़िक टीचिंग के लिए और आर्ट्स के टीचिंग के लिए. नोट और इस कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट्स में साइंस और सोशल साइंस को मिल जाता है कुछ पार्ट, लेकिन ज़्यादा फोकस बेटा ह्यूमैनिटीज़ पे और आर्ट्स पे रहता है इसका. अगर हम देखें कौन सी चीज़ को रेडियो को पॉपुलर करती है, इट्स वाइड कवरेज. रेडियो कवर्स वाइड जियोग्राफिकल एरिया. Even schools in remote places can access the broadcast, which can extend the education to greater student population at one time. मैंने पहले बात ये कही है कि आप ये जो रेडियो का टॉपिक है इसको मैस मीडिया के मुतबादल रख के हमने इसको सोचना है और देखना है, क्योंकि ये चीज़ें ही हमें मैस मीडिया की जो तरक्की है उसकी बेस बना है. ये क्योंकि रेडियो से ही चीज़ें आगे चली हैं सारी. तो जैसे इसमें वाइड कवरेज है वैसे बाकी तमाम मैस मीडिया में तो वाइड कवरेज है. चीप मीडियम है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है. In comparison with the other technologies, radio is regarded as the cheapest medium nowadays, and even the school with a rural setting or minimum settings can have a radio with difficulty. And another plus point in favor of radio is that it can be repaired easily, and spare parts do not cost much more. उसको आसानी से भी जो लोग टेक्नीशियंस बैठे हो सही कर लेते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ रेडियो इज इजीली अवेलेबल विद इन द इंस्टीट्यूशन रेडियस. सो इन एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई रेडियो कैन बी ऑपरेटेड इन बैटरी. जो कि ज़्यादा पावर नहीं लेता तो उसको आप बैटरी पे ऑपरेट कर सकते थे. और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस के लिहाज से रेडियो हैज़ गॉट द वेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम एज वेल एज द ट्रांसमिशन ऑफ इट. आपको बेटा जो मोस्टली रेडियो होता है ये एक रेडियो चैनल होता है जो कि किसी न किसी जगह से ये पोस्ट हो रहा होता है, कहीं लॉन्च होता है, और इसके लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है. कमरा ही काफ़ी होता है. बाकी इसके जो गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, एंटीना है या टावर है, वो इसको चाहिए होता है. ये एक दफ़ा लग जाता है तो उसके बाद ये साल दहाइयों ये चलता रहता है. तो उसकी इस लिहाज से मिस्टर यूनिवर्सिटी सरगोदा ने जो रेडियो 98.2 फिक्स किया है, उसके लिए उसके बाद छोटा सा बिल्डिंग है और छोटे से जो कमरे हैं उसी में लोग अपने प्रोग्राम कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं और फिर वो ऑन एयर हो रहे होते हैं. और ऑथराइज personnel and their experience is sought in this regard. अच्छा, इसमें अगली जो मेरे बात आ रही है वो टेलीविज़न की है, वो हम कल करेंगे. लेकिन अभी तक जो मैंने बेटा बात की है ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं चूँकि ये रेडियो ही बेस बना है मैस कम्युनिकेशन में. रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को, दैट रेडियो वाज द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैस मीडिया. तो रेडियो की बुनियाद पे जो कुछ काम, जो जिस तरह के एक्टिविटीज़ हम करते रहे, जिस तरह के प्लानिंग हम करते रहे रेडियो प्रोग्राम्स के लिए, रेडियो स्क्रिप्ट्स के लिए और रेडियो के जो भी आर्टिफैक्ट्स के लिए, वो सारे के सारे फिर सिमिलर टू सिमिलर जो प्लानिंग थी और काविशें थी वो और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सारी की सारी बाकी रेस्ट ऑफ मैस मीडिया, चाहे वो टीवी है, इंटरनेट है और बाकी चीज़ें हैं, उनकी तरफ हमें मूव होती हुई नज़र आती हैं. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. जी क्लास. Yes, sir.